Good morning to all of you. Uh, I'm very glad to start this child health nursing for the new batch. I hope all of you are safe and eagerly waiting for your second year exams also. But because there's a guideline from the university that we have to start the new session, so this is the very first topic of child health nursing. So this is a very basic introductory lecture. So where I will be teaching you what do you mean by pediatrics, what is pediatric nursing, what are the qualities of pediatric nurse. So these are the things which, and what are the basic differences between adult and a child. Okay, so let's start the topic. Now, what is pediatrics? Pediatrics is a branch of medicine which deals with the health and medical care of infants, children, adolescents from birth up to the age of 18. ठीक है, क्या है pediatrics? It is a branch of medicine. ठीक है. Now we are dealing with two things. One is we are dealing with health and second is we are dealing with medical care of. ठीक है. टू एस्पेक्ट्स, इसमें दो एस्पेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं. वन इज वी आर टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ. हेल्थ मतलब फॉर एग्जांपल एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ, उसको कोई डिजीज नहीं है बट वो न्यूबॉर्न बेबी को बहुत केयर की जरूरत है. क्या केयर करना, कैसे कैसे करना, क्या उसका वेट है, क्या उसका लेंथ है, क्या माइलस्टोन्स उसका नॉर्मल है, कब वो टर्निंग करना शुरू करेगा, कब सपोर्ट के साथ बैठेगा, कब क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, ये सब आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ. ठीक है. कब उसको वैक्सीनेशन देना, these are all different aspect of health. Now what is medical care? This child falls sick and then the child requires some treatment. ठीक है. तो पीडियाट्रिक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग दो चीज स्टडी करते हैं. वन इज वी आर स्टडिंग दी हेल्थ एस्पेक्ट. ठीक है. व्हाट इज द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सेकेंड इज इफ दिस चाइल्ड फॉल्स सिक तो उसको हमको केयर करने की जरूरत है. ओके. नाउ किसको किसको हम केयर करते हैं? वी टेक केयर ऑफ द इन्फेंट्स. नाउ हु इज अ इन्फेंट? किसको किसको बोलते हैं इन्फेंट्स? हम लोग अलग से क्लास में वी शैल बी स्टडिंग अबाउट टर्मिनोलॉजीज. फिर भी बेसिक है, बर्थ से लेकर 1 ईयर तक के हर बच्चे को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं. बर्थ टू 1 ईयर. ठीक है. भले वो प्री टर्म पैदा हुआ हो, भले वो टर्म बेबी हो, भले पोस्ट टर्म हो. अभी आपको समझ में आने आ रहे प्री टर्म किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग आगे के क्लास में लेंगे. प्री टर्म मतलब जो 37 वीक्स के पहले पैदा हो गया. ठीक है. पोस्ट टर्म किसको बोलते हैं? जो 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ. इसके बीच वाले बच्चों को हम कहते हैं टर्म बेबीज. ठीक है. तो बेबी कभी भी पैदा हुआ, वेदर द चाइल्ड में बी अ प्री टर्म or a post-term baby, but once a child is born, from that date to 1 year is the infancy. Okay, then we have different stages and we are talking about children and adolescents till the age of 18 years. ठीक है. birth से लेकर 18 years. if you take example of American Academy of Pediatrics, so they consider instead of 18 21 years. okay, ठीक है. तो अभी हमको समझ में आ गया what is pediatrics. एक branch of medicine है जिसमें we are taking care of the health as well as the medical aspects right from the time the child is born till the age of 18 years. Okay, so pediatric, I shall be talking about two Greek words. Okay, so one is, this means healer of children, and this definition is derived from two Greek words. Pias, that means a child, and atrios means a doctor. Okay, so what is pediatric? It is healer of children. This is one definition. उसको छोड़कर दूसरा एक और definition है where we are taking 3 words. Okay, first is pedia. Pedia means child. Second is itriac, that means treatment, and ix means it is a branch of science. We are talking about pediatrics, so it is a child treatment and it is a branch of science. Okay, so pediatric means a science of child care and scientific treatment of childhood disease. ठीक है. जो मैं पहले कह रही थी वही चीज यहाँ भी है. सो इट इज साइंस ऑफ चाइल्ड केयर. वी ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. सो वो चाइल्ड केयर एस्पेक्ट्स भी हम स्टडी करेंगे. बट इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम ट्रीटमेंट, वी विल बी स्टडिंग अबाउट साइंटिफिक हाउ टू ट्रीट द child in a scientific manner. So pediatrics is synonymous with child health. Synonymous मतलब equal to child health. We are dealing with child health. Okay, similar meaning is pediatrics मतलब बच्चों के हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं.
ओके। नाउ पीडियाट्रिक्स इज नॉट अ वेरी ओल्ड स्पेशलिटी। देखो एडल्ट के बारे में बहुत पहले से था, पर पीडियाट्रिक्स मिड 19th सेंचुरी में ही पीडियाट्रिक्स ब्रांच डेवलप हुआ है, ठीक है। नियोनेटोलॉजी तो उसके काफी बाद हुआ, ओके। सो नियोनेटोलॉजी मतलब न्यू बॉर्न पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, उसको हम क्या कहते हैं, नियोनेट। सो बर्थ टू 28 डेज वालों का पीरियड और भी बाद में डेवलप हुआ, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो मैं अभी नियोनेटोलॉजी में नहीं जा रही हूँ। दिस इज it is a new medical specialty which started only in the mid of 19th century. Now Abraham Jacobi, so he is known as the father of pediatrics, who was between 1830 to 1919, और ये डॉक्टर Abraham Jacobi was the person who set up child clinics in the city of New York. He started a department in the New York hospital for specifically for children. So he is known as the father of pediatrics. Okay, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? We have studied that pediatrics is healer of children. This also means pedia means child, itriac means children, and ix is it is a branch of science, okay, and it is a new specialty. इतना चीज हमने पढ़ा, और इधर हम बच्चों को केयर करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द एज ऑफ 18 years, ठीक है। इतना बेसिक्स अभी हमको समझ में आ गया. नाउ विल गो फर्दर. Now this is another definition. It is now what is the definition of pediatrics? It is a branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescence. ठीक है. Conception किसको बोलते हैं? जब मेल sperm और फीमेल एग यूनाइट होता है and then neonate is a zygote is formed. Okay, so this that is called as conception. Okay, when as one cell is formed, एक सेल बनता है when a male sperm and female egg they unite together and they form one zygote. ठीक है, तो that is called as conception. तो बच्चे लोग पैदा होने के बाद नहीं, we are talking about children right from the time they are forming one cell. एक सेल जब कंसेप्शन हुआ वहां से लेकर we are talking about till adolescence. Okay, and we are talking about adolescence in health as well as illness. ठीक है, so we are talking about care of child from conception to adolescence both in health as well as illness. ठीक है, समझ में आ गया. This is a better definition where we are not talking concentrating only about after the child birth of the child, but यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? It is the care of child in health as well as illness. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? From the conception to the adolescence. Okay, पर इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? It is concerned with preventive, promotive, curative and rehabilitative care. ठीक है, प्रिवेंटिव केयर मतलब देखो जितना हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट cleanliness, we shall be talking about vaccinations. तो ये सब किसमें आ रहा है? These are all preventive aspects. ठीक है, preventive मतलब बीमारी नहीं होने के लिए we take some steps. Okay, promotion of health का मतलब क्या? For example हम लोग बोलते हैं कि भाई exclusive breastfeeding होना चाहिए. Okay, from birth to 6 months. Okay, so then उसके बाद weaning diet start करना है. So these are all promotive care. Curative का मतलब क्या? एक बार बच्चा बीमार हो गया, then we give some care, so that is curative. Rehabilitative का मतलब क्या? Suppose the child may be having some serious illness where there may be some deformity. For example, the child suffers from polio. तो हम लोग rehabilitate कैसे करेंगे? We will give some crutches to the child so that the child can walk about. कुछ उसको special depending on जो भी इसका disability है, we try to help the child in terms of कभी there may be some deformity, congenital deformity in the legs, जिसमें हम लोग artificial कुछ legs लगाकर then we help the child to live. Okay, so here we are talking about the care in illness as well as health from conception to adolescence. और इसमें हम लोग 4 टाइप का केयर देते हैं. First is preventive, second is promotive, third is curative and fourth is rehabilitative care. ठीक है,
क्या क्या है? फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, सेकेंड इज प्रमोटिव, थर्ड इज क्यूरेटिव एंड फोर्थ इज रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन to adolescence, both in health as well as illness. Okay, so this was another definition of pediatrics. Now this is Dr. Abraham Jacobi, who is known as the father of pediatrics. Okay. Now what is pediatric nursing? The specialized area of nursing practice concerning the care of children during wellness and illness. ठीक है, so ये nursing practice है. Nursing practice मतलब what we give as nursing care. It is a specialized area of nursing practice where we are concerned with the care of children both in wellness as well as illness. इसमें भी जो 4 एरिया है, it includes same thing: preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. Okay, so this is a specialized area of nursing practice. ठीक है, जिसमें हम बच्चों को केयर करते हैं. Now, pediatric nursing involves giving assistance, care and support to the growing and developing children. ये आप देख सकते हैं, this is a newborn baby. ये न्यूबॉर्न बेबी है, डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज पार करते करते यहाँ तक आ गया. ओके, सो फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस. सो पीडियाट्रिक नर्सिंग में व्हाट वी गिव इज वी गिव असिस्टेंस, हेल्प करते हैं पेरेंट्स को, केयर करते हैं टू द चाइल्ड एज वेल एज टू द पेरेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. वी ऑल्सो सपोर्ट किसको? ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चिल्ड्रन. सो दीज आर ऑल डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, सो दीज आर मदद करते हैं. नेक्स्ट वी गिव केयर, वी सपोर्ट टू द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चिल्ड्रन. एंड व्हाई डू वी डू सो? टू अचीव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर फंक्शनिंग विद फुलेस्ट कैपेसिटी. सो व्हाट वी वांट इज, जो भी बच्चे का एज हो उसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी से बच्चा अपना फंक्शन कर सके. उसके लिए जो भी मदद चाहिए, जो भी केयर चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, वी गिव टू द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चिल्ड्रन. सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ pediatric nursing. Okay, now before we go into the details, हम लोग एक topic लेंगे. We shall be taking a class, a specific class on differences between adults and children. ठीक है, तो where we will be talking about differences in each systems. अभी मैं वो system में नहीं जा रही. This is just a nutshell in 2 to 3 slides कि what are the basic differences. See, one thing to remember is चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स. मिनिएचर एडल्ट्स मतलब ठीक है, एडल्ट का एक छोटा रूप बच्चे नहीं है. ओके, दिखने में भले जैसे आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़ा वाला दिस इज एन एडल्ट एंड दिस इज अ चाइल्ड. लुक वाइज तो ऐसे लग रहा है हाँ भाई एडल्ट का छोटा रूप है, बट देर आर मेनी डिफरेंसेस. और ये डिफरेंसेस को हमको दिमाग में रखना जरूरी है. इट्स नॉट जस्ट ओनली दी साइज. मतलब इसमें जैसे फोटो में आपको दिखा रही, इसमें साइज एक बड़ा एडल्ट का छोटा रूप दिख रहा है, बट इट्स नॉट ओनली दैट, देयर आर मेनी डिफरेंसेस. और ये डिफरेंसेस को दिमाग में रखते हुए इज व्हाट वी शैल बी टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, सो द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द टू इज, बिटवीन टू मतलब एडल्ट एंड चिल्ड्रन क्या है? साइज का. ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ रहा है कि बिकॉज साइज ऑफ द एडल्ट इज मोर, साइज ऑफ द चाइल्ड इज स्मॉल, तो ये है साइज. ओके, अब child's head is larger in proportion than his body, then the adult's head is in proportion to the body. ठीक है, एडल्ट का सिर का साइज और बॉडी के साइज के हिसाब से बच्चे का सिर का साइज इज बिगर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब जब हम लोग कंपेयर करते हैं एडल्ट का बॉडी के साइज के हिसाब से सिर छोटा है, बट न्यूबॉर्न बेबी का हेड का साइज इज बिगर इन प्रोपोर्शन टू हिज बॉडी. ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा पहला तो साइज है जो ऑब्वियस हम लोग को दिखता है. फिर नेक्स्ट हेड. ओके, तो साइज ऑफ द हेड इज मोर. सेकंड है इन बेबीज द बॉडीज टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म इज इमेच्योर एंड अनस्टेबल. ठीक है, बच्चों का अगर हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स में, जैसे बेबी पैदा होता है अगर आप उसको कवर करके सब नहीं रखेंगे तो within 1 minute 1 degree temperature will be falling. Okay, so that is the immaturity and instability of the body's temperature control. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का अगर आप टेम्परेचर या उसको गर्म रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 मिनट में 1 डिग्री टेम्परेचर उसका घट जाएगा. क्यों घट जाएगा? Why? Because body's temperature control mechanism
वो इमेच्योर है और अनस्टेबल है, ठीक है। दूसरा है चिल्ड्रन हैव स्मॉलर एयरवेज विद मोर सॉफ्ट टिश्यू एंड नैरोइंग एज द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ओके। जो बच्चों का एयरवेज है, एयरवेज मतलब उनका हमको मालूम है नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो एयरवेज है वो रास्ता बहुत छोटा, पतला पतला, बहुत ही नैरो एयरवेज है, ओके। फिर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ चाइल्ड इज फास्टर देन दैट ऑफ एडल्ट, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज का रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 है, ओके। नाउ एडल्ट में हम लोग का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, वी टॉक अबाउट 60 to 20। तो रेस्पिरेटरी रेट न्यूबॉर्न बेबीज में काफी फास्ट है एज कंपेयर टू एडल्ट, ओके। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड्स ट्रेकियल ओपनिंग एंड ईसोफेगस ओपनिंग्स आर क्लोजर, ठीक है। हमको मालूम है कि ट्रेकिया हमारे नेक में सामने जो है दैट इज ट्रेकिया, उसके पीछे है ईसोफेगस, ठीक है। तो ये दोनों का जो ओपनिंग है एकदम पास में इन चिल्ड्रन, सो दैट इज वाई बच्चे आसानी से एस्पिरेट कर सकते हैं। आसानी से मतलब अगर मुंह में है कुछ चीज तो वो ट्रेकिया में जाने का चांसेस ज्यादा है इन चिल्ड्रन एज कंपेयर टू एडल्ट, ओके। व्हाई? बिकॉज दोनों को ओपनिंग जो है वो पास में है, ठीक है। चिल्ड्रन डिहाइड्रेट इजीली, ठीक है। अगर एडल्ट को 3-4 बार लूज मोशन हो जाए तो उसको ज्यादा डिहाइड्रेशन होता नहीं, बट 2 to 3 लूज मोशन इन चिल्ड्रन विल कॉज मोर डिहाइड्रेशन एज कंपेयर टू एडल्ट्स। ऐसा सब क्यों हो रहा है वो जब हम डिफरेंसेस डिटेल में पढ़ेंगे, वी शैल बी स्टडीइंग, ओके। नाउ दिस चिल्ड्रन हैव लेस ब्लड देन एडल्ट, तो इसीलिए क्या है थोड़ा सा भी ब्लीडिंग होगा तो दे गो इनटू सीवियर शॉक, ओके, ठीक है। थोड़ा छोटा एक वुंड होगा, थोड़ा ब्लीड किया, दे विल गो इन दिस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जल्दी चले जाएंगे एज कंपेयर टू एडल्ट। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड का अमाउंट इज लेस, ओके। देन इस चिल्ड्रन का रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा है, हार्ट रेट भी ज्यादा है। नेक्स्ट इज यंग चिल्ड्रन एक्सट्रीमिटीज आर लाइकली टू अपीयर मॉटल्ड। मॉटल्ड मतलब मैं जब आपको हाइपोथर्मिया सिखाऊंगी, मैं डायग्राम दिखाऊंगी, इट इज अ वेरी थिक रफ स्किन, उसको हम लोग बोलते हैं मॉटलिंग। ये हाइपोथर्मिया अगर है तो वो ये पुअर सर्कुलेशन में भी मॉटलिंग होता है, और जो बच्चों में हाइपोथर्मिया मतलब बच्चों का टेम्परेचर जब कम होता है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों का द टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज वेरी पुअर एज कंपेयर टू एडल्ट्स, ओके। सो दीज छोटे बच्चों का दे आर लाइकली टू अपीयर मॉटल्ड स्पेसिफिकली इफ अगर उसका बच्चों को गर्म नहीं रखा है तो, ओके। नाउ चिल्ड्रन हैव मोर सरफेस एरिया इन रिलेशन टू बॉडी वेट देन एडल्ट, ठीक है। एडल्ट का जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से उनका सरफेस एरिया से ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? बच्चों का है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, दे लूज मोर फ्लूइड फॉर अ डैमेज स्किन, ठीक है। अगर बर्न इंजरी हुआ है, द अमाउंट ऑफ the fluid loss is more in children as compared to adult, ठीक है। फिर बच्चों का मसल फैट मास लेस है, ओके। सो अगर कहीं चोट लगा तो एडल्ट्स में चोट लगने का चांसेस कम रहता है, बिकॉज मसल एंड फैट इज मोर, बट इन चिल्ड्रन दिस इज लेस, इसलिए चोट लगने का चांसेस आर मोर, ओके। नेक्स्ट इज child's abdominal organs are relatively larger than that of adults, ठीक है। abdominal organs proportion, we are talking about proportion, तो एडल्ट का जो प्रोपोर्शन है उससे बड़ा ऑर्गन्स रहता है बच्चों में, ठीक है। अ चाइल्ड्स डायफ्राम इज लोअर देन एडल्ट। डायफ्राम हमको पता है किसको बोलते हैं, वो फ्लैट एरिया जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है, बीच का फ्लैट एरिया, ओके। ये वाला जगह में से दिस एरिया हैज डायफ्राम, ये वाला एरिया, this area where it divides the chest cavity and the abdominal cavity into two different parts. Now बच्चों का diaphragm is lower than that of adult, ठीक है। तो इसीलिए लिवर, स्प्लीन, डियोडेनम में इंजुरीज का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। So these are the differences between adults and children, ठीक है। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, उनका रेट ज्यादा है, chances of aspiration is more, chances of dehydration is more, then they lose fluid faster as compared to adult. There are more chances of injury. The children airways are very narrow as compared to adults. So these are the basic differences which we should always
कीप इन माइंड कई बार क्या करते हैं हम लोग सिर्फ साइज देखते हैं. इट्स नॉट ओनली साइज बट देयर आर मच मोर डिफरेंसेस बिटवीन द एडल्ट एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है whenever we are taking care of a child. Okay, but it can be a newborn child or it can be an adolescence, but these are the things which we have to keep in mind. Okay, now is what are the qualities of a pediatric nurse? पहला क्या है? Be a loving person and have liking for children. Can you say this? Can you see how a nurse is interacting with a child? She is also smiling. The child is also smiling. ठीक है, अभी तक आप क्या था, सेकेंड ईयर तक यू वर डीलिंग ओनली विद एडल्ट्स. ठीक है, आप स्माइल भी नहीं करने से चलेगा. मतलब आपका थोड़ा कुछ आप आराम से आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल से आप आसानी से एडल्ट पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं. बट फॉर चिल्ड्रन यू नीड टू बी अ लविंग पर्सन. ठीक है, लविंग पर्सन किसको लव करना है? बच्चों को. बच्चों के प्रति you should be a loving person and you should like children. Unless and until you like children, it will be very difficult for you to work in pediatrics. ठीक है, तो अगर आप बच्चों से प्रेम करते हैं then you can be a good pediatric nurse. Okay, so be a loving person and have a liking for children. Next is have patience. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट्स को इंजेक्शन लगाना था. फॉर एग्जांपल आप H3 वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, आप ट्रे लिए सीधा गए. हाँ, आप पेशेंट का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल रामलाल नाम है, तो आप इतना बोलेंगे, रामलाल जी हम आपको इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं. यू गिव एन इंजेक्शन एंड कम बैक. दैट्स ऑल. ओके, बट बच्चों को लगाने जाते समय you should have patience. Why? Because as soon as the child sees you bringing a tray with a syringe, the child will start howling, creating a scene. The child sometimes will run away from one place to other. The child will not cooperate. So these are all the issues which are there. Okay, so it is very important for a pediatric nurse to have patience. ठीक है, सहनशीलता होना जरूरी है. Then is a pleasant appearance. ये आप देख रहे हैं, आप pleasant appearance नहीं लेके जाने से क्या होगा? As soon as you see a child, at least even if you don't talk, at least you have a smiling face. So that pleasant appearance will be very soothing, not only for the child but also for the parents. Okay, next is an ability to understand child's behavior. ठीक है, बच्चे जो भी behavior शो कर रहे हैं, a pediatric nurse should be able to understand. For example, जैसे टॉडलर बच्चे जो 1 to 3 years के बीच में हैं, जैसे एक स्ट्रेंजर को देखते हैं, दे विल नॉट कम इन फ्रंट, दे विल हाइड बिहाइंड द पेरेंट्स, मे बी द क्लोथ ऑफ द पेरेंट्स और साड़ी ऑफ द पेरेंट्स. वो लोग ऐसा वाला करते हैं. ठीक है, और दे विल हाइड देयर फेस. तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सो वी शुड हैव अ पीडियाट्रिक नर्स शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स बिहेवियर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज have ability to maintain good IPR. IPR is interpersonal relationship with children. ठीक है, बच्चों से बात करते समय we have to this is different from adult communication. We will be asking their name, we will be asking their class. Suppose if this child is going to school, we will ask something else. Then we'll prepare injection लगाना है तो we'll use a doll. उसमें हम लोग दिखा सकते हैं. और to this उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वी कैन हैव अ टॉम एंड जेरी वीडियो या म्यूजिक कुछ दिखा के, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हैव एबिलिटी टू मेंटेन अ गुड IPR विद चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज बी फ्रेंडली, honest, gentle, diligent and humorous. Okay, friendly with the child. The child, a friendly nurse is a welcome change to the child. फिर honest, कई बार कई लोग क्या बोलते हैं, भाई इंजेक्शन है दर्द नहीं देगा. जैसे दर्द नहीं दे बोलते then as soon as the child feels pain, the child will not be cooperating. ठीक है, तो we have to be honest. Yes, we will have some amount of pain, but we will try to reduce the pain to as much as possible. We have to be gentle. ठीक है, diligent and humorous, कुछ हंसी मजाक करके. Then this is how these are the qualities. ठीक है, have a good observation, judgment and communication ability based on scientific knowledge and experience. ठीक है, good observation. ठीक है, for example, a newborn child एक अक्षर नहीं बोलेगा. ठीक है, but seeing the sign and symptoms, if a good pediatric nurse will be
ऑब्जर्विंग क्लिनिकली द साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, बच्चा तो कुछ नहीं बोल पाएगा, तो कैसे हम पहचानेंगे? बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, किसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेगा आगे आगे वाले क्लास में वी शैल बी स्टडिंग। सो पीडियाट्रिक नर्स हैज टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। ओके, देन इज वी नीड टू जज वेदर जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इज इट बेनिफिशियल कि बच्चे का डिटोरिएशन हो रहा है। ऑल दिस नीड्स गुड जजमेंट एंड अ कम्युनिकेशन एबिलिटी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। सो देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन एबिलिटी बेस्ड ऑन knowledge, and naturally with experience our skill also improves. Be well informed, be well informed का मतलब है, see pediatrics has changed a lot. जो pediatrics मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा वो मैं अभी नहीं पढ़ाती। Why? Because many things have changed, so we have to be well informed. अभी क्या चल रहा है, all these things we have to be well informed, we have to be skillful, क्योंकि बच्चों में we need expertise. Okay, so we have to be skillful. Then is responsible मतलब कोई भी काम करना है, we have to be responsible and accountable, we have to be truthful and we have to be trustworthy. मतलब ऐसा हमारा behavior होना चाहिए जिसमें parents and children can trust us. Okay, so these are the qualities of a pediatric nurse. बाकी जो हम लोग जो मेडिसिन में पढ़े थे वो सारा क्वालिटी तो चाहिए। Apart from that, these are these specific qualities which a pediatric nurse should have. Okay, now is extended role of pediatric nurse. ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, I will be taking only half part of this, but जो remaining part I will be taking the next class. Okay, so this is the extended role of pediatric nurse. First is primary caregiver. ठीक है, can you see this? Okay, pediatric nurse should provide preventive, promotive, curative, rehabilitative care in all levels of health services as a therapeutic agent. Therapeutic मतलब ट्रीटमेंट देने वाले एजेंट के रूप में pediatric nurse को 4 एरिया में केयर करना है। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, सेकेंड इज प्रोमोटिव, थर्ड इज क्यूरेटिव, फोर्थ इज रिहेबिलिटेटिव। देखो प्रिवेंटिव अच्छा है, और प्रिवेंटिव अगर केयर अच्छा है तो उसको डिजीजेस से बचे रहेगा, प्रोमोटिव भी रहेगा अच्छा केयर, तो देन द चाइल्ड विल बी safe from the diseases. Curative care कब देना है? If the child falls ill. Rehabilitative care has to be given if the child has some sort of disability, जिसमें बच्चे को इतना सपोर्ट करना है कि वो जितना मैक्सिमम अपना काम कर सकता है वहाँ पर, not to काम. For example, we are talking about growth and development. If the child is unable to walk, we have to give some artificial limbs if that is required, so that the child can walk to the fullest potential. Okay, next is she acts as a case finder and compassionate skilled caregiver as needed by today's society. Case finder का मतलब क्या है कि she will be able to identify which case it is, which disease it is. ठीक है, and compassionate skilled caregiver. compassionate का मतलब क्या है? एक compassion, एक एक दया के भाव से, and skilled मतलब see in children ब्लड का सैंपल लेना है तो 10-15 बार क्लिक किया तब एक सैंपल मिल रहा है, वैसे वाला नहीं चलेगा. ओके, सो वी हैव टू बी स्किल्ड केयर गिवर, जो आज के सोसाइटी में चाहिए. प्राइमरी केयर ऑल्सो गिविंग प्रोवाइडिंग कंफर्ट, feeding, bathing, safety, etc. Okay, primary care मतलब suppose if the newborn baby is born, the baby requires that the baby should be warm, the baby has to be feeded, the baby will pass meconium, the baby has to be kept clean. So these are all primary care. Okay, next is हेल्थ असेसमेंट एंड इम्यूनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी केयर. ठीक है, हेल्थ असेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे बेबी पैदा हुआ तो उसका वेट कितना है, लेंथ कितना है, हेड सरकमफ्रेंस कितना है, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना है, व्हाट इज कुछ उसको कंजेनिटल एनोमली तो नहीं है. दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट. ठीक है, इम्यूनाइजेशन. ठीक है, दीज आर ऑल बिग टॉपिक्स इन इटसेल्फ. तो यहाँ पर कैसे हेल्थ असेसमेंट करेंगे उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बिकॉज वी शैल बी स्टडिंग इट इन डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन. सो दिस इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी केयर. ठीक है, प्राइमरी केयर का मतलब क्या है? वी हैव टू गिव प्रिवेंटिव,
promotive, curative and rehabilitative services. कोई भी लेवल्स का हो, कोई बेसिक सब सेंटर लेवल हो और वेदर की टर्शरी केयर है जहाँ पे बहुत पीडियाट्रिक वेरी स्किल्ड आईसीयू हो, कहीं भी हो, these are the 4 areas which we need to give. Second is she has to be a compassionate, skilled care giver. Third is feeding, bathing, keeping the child healthy, clean, comforting, all these things. So these are primary health giver. उसको छोड़कर health assessment and immunization. So these are all included in primary caregiver. So this is extended role of pediatric nurse. Okay. नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेटर. ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, मतलब हेल्थ एजुकेशन आपने सेकेंड ईयर में भी दिया होगा, जो भी टॉपिक आपको मिला होगा, यू मस्ट हैव गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द एडल्ट्स. पर यहाँ पर वी नीड टू गिव हेल्थ एजुकेशन इफ द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग. तो बच्चों को भी दे सकते हैं. वी ऑलवेज इन्वॉल्व पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, सो डिलीवर प्लान्ड एंड इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट. प्लान्ड मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल न्यूबॉर्न बेबी वाला वार्ड है. फॉर एग्जाम्पल आप न्यूबॉर्न बेबीज को जहाँ पर रखते हैं वहाँ देयर कैन बी प्लान्ड, क्योंकि देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस. हाउ टू फीड द चाइल्ड, बेबी को कौन सा पोजीशन रखना, कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग का साइन, व्हाट आर द 4 साइंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हाउ टू नो वेदर द ब्रेस्ट फीडिंग इज ओके, वेदर द अमाउंट द बेबी इज गेटिंग इज नॉर्मल और नॉट. ये सब क्या है? प्लान्ड टीचिंग. प्लान्ड टीचिंग मतलब आप प्लान कर सकते हैं कि बिकॉज दीज आर द यूजुअल थिंग्स. कैन बी इम्यूनाइजेशन, कैन बी बेसिक, व्हाट आर द बेसिक वेट, हेल्थ, वेट, लेंथ, ये सब चीज के बारे में. और इट कैन बी इवन इंसिडेंटल. इंसिडेंटल मतलब जरूरत के हिसाब से आप टॉकिंग दे रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वार्ड में गए, आपने देखा कि बेबी फीड ले रहा है पर उसका लिप्स सिर्फ निप्पल पे टच्ड है पर एरियोला कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो आप इंसिडेंटल टीचिंग देंगे. इंसिडेंटल मतलब आपने देखा तब समझ में आ गया कि बेबी का फीडिंग, जो मदर फीड कर रही है वो टेक्निक गलत है और बेबी को ठीक से मिल्क नहीं मिलेगा. तो इंसिडेंटल क्या हुआ? नाउ यू विल बी टीचिंग हर हाउ टू फीड द बेबी. ठीक है, आप वार्ड में गए, बेबी का पैर छुआ तो ठंडा था, एब्डोमेन छुआ तो गर्म था. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कंगारू मदर केयर कैसे देना है आप बताएंगे. सो दीज आर ऑल इंसिडेंटल. इंसिडेंटल का मतलब क्या है? जरूरत के हिसाब से जो चाहिए वो हेल्थ टीचिंग आप देते हैं. ठीक है, प्लान्ड है. प्लान्ड मतलब वेर वी एंटिसिपेट करेंगे भाई दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेर कैन हैव अ प्लान टीचिंग. एंड इंसिडेंटल इज नीड बेस्ड. ओके, next is, and why do we give is this health education given to create awareness about healthy lifestyle and maintenance of health, change in health behavior to bring change in attitude. Okay, अभी हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चे का हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब कैसा होना चाहिए, क्या देना है, किस एज में देना है. कैन यू सी दिस? शी इज शोइंग अ चार्ट. फिर देखो कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स वो दिखा रही है. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ए हेल्दी लाइफस्टाइल. कि जैसे फॉर अभी मैं आपको बता रही थी 6 months तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है और कुछ देने की जरूरत नहीं. ग्रेजुअली वी स्टार्ट, तो नेक्स्ट डे से फुल रोटी चावल पूरा हम नहीं दे सकते. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच हैज टू बी गिवन, तो वो हम लोग वीनिंग में बताएंगे. ठीक है, सो दीज आर वी गिव हेल्थ एजुकेशन ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो. ठीक है, हेल्थ चेंज बिहेवियर हो एंड एटीट्यूड चेंज हो जाए. ठीक है, so these are the basic aspects of health education and develop helpful practices regarding child care. बच्चों को कैसे केयर करना है. there are many cultural factors also which can be affecting. तो ये सब के लिए क्या practices है regarding child health care, ये सब health education में देते हैं. तो health education में क्या देते हैं? One is we give planned teaching, जो हम एंटिसिपेट करते हैं. एंटिसिपेट मतलब हम मान के चलते हैं कि दीज मे बी द इश्यूज, तो उसके बारे में हम लोग हेल्थ टीचिंग देते हैं. जरूरत के हिसाब से दैट इज इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग. हम लोग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वी गिव हेल्थ टीचिंग. नेक्स्ट इज वी आल्सो गिव, वी वांट टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स. अभी जैसे लोग बोलेंगे भाई पहले तो हम लोग टीकाकरण हमारे जमाने में नहीं था, अभी आप इतना सारा टीका कर रहे हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो वी नीड टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन
ताकि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के मन में देयर कैन बी चेंज ऑफ एटीट्यूड इफ रिक्वायर्ड, एंड वी आर कंसर्न विद हेल्थफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग हेल्थ केयर. जैसे मैं एग्जांपल बता रही, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इट वाज वेरी कॉमन टू हैव अम्बिलिकल सेप्सिस. ठीक है, जैसे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके ऊपर गोबर लगाते थे, गोबर लगाकर कपड़ा से बांध कर लाते थे. ठीक है, तो क्या होता था, व्हेन दिस गोबर वाज यूज्ड और काउडंग वाज यूज्ड, बहुत बच्चों को सेप्सिस होता है, मेनी चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू दिस. ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन देखकर व्हाट वी डू इज वी डेवलप हेल्थफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग चाइल्ड केयर. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड रोल. थर्ड इज नर्स काउंसलर. नर्स काउंसलर का मतलब क्या है, हम लोग काउंसलिंग देते हैं. ओके, नाउ नर्सेस मस्ट बी एक्टिव लिसनर. ठीक है, एक्टिव लिसनर मतलब पेरेंट्स के मन में जो भी डाउट है या बच्चों के मन में है, एनीथिंग, वी हैव टू बी एक्टिव लिसनर, ताकि in order to establish a therapeutic relationship between parents and the child and making a healthcare plans easier. ठीक है, active listener मतलब जो भी if the child is able to communicate, we need to communicate to the children. If the parents have need some clarification, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं, we have to listen carefully and talk to them as and when required. फिर problem solving approach should be used to help the parents and the family. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के सामने उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. जैसे चिल्ड्रन का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट रहता है. सिकनेस है, then also so many doubts are there depending on the type of treatment. Suppose बच्चे को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, then chemotherapy requires a specialized treatment. ठीक है, तो ये सब चीज has to be taught to the parents. Okay, so a nurse must be a good counselor by having a quality of active listening, ताकि उनके पेरेंट्स और नर्सेस के बीच में एक अच्छा थेरापेटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए. एंड वॉट एवर इज द प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हैज टू, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, शुड बी यूज्ड ताकि पेरेंट्स और फैमिली को हम लोग हेल्प कर सके. ओके, next is a nurse is a social worker also. She can do case work especially for children and try to alleviate social problem related to child health. ठीक है, कई बच्चों को क्या होता है, social problems रहता है because of child health. I will give you a simple example. Suppose parents को HIV है, पेरेंट्स को HIV था इसलिए बच्चों को भी HIV हो गया. ओके, नाउ जैसे पता चलता है HIV है तो बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस व्हाट द नर्स कैन डू, द नर्स should participate in available social services and can refer the child and family for necessary social support from child welfare agencies. ठीक है, इंडिया में हमारे पास child welfare agencies कम है, but many developed countries will have specific social support system. ठीक है, जहाँ पर बच्चों को रेफर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा डेफ एंड डम्ब है तो सोशल सर्विसेज उनके लिए स्पेशल स्कूल्स अवेलेबल हैं. ओके, सो द नर्स कैन रेफर दीज चिल्ड्रन टू स्पेसिफिक स्कूल्स जहाँ पे बच्चे का एजुकेशन चल सकता है. द चाइल्ड मे बी अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, सो स्पेशल स्कूल्स आर अवेलेबल टू मैनेज सच चिल्ड्रन. ठीक है, there can be some financial issues, so there are some agencies which help such children. जो ऐसे एजेंसीज है जो सिर्फ HIV पॉजिटिव पेरेंट्स और HIV पॉजिटिव बच्चों के बीच में काम करने वाले NGOs हैं. सो दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इश्यूज. ठीक है, सो अ नर्स कैन बी अ सोशल वर्कर और लाइजनिंग का काम कर सकती है विद सच एजेंसीज इफ सच नीड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज एडवोकेट. एडवोकेट का मतलब क्या है, एडवोकेट जैसे आपको मालूम है वकील का क्या काम है, अगर किसी व्यक्ति का कुछ गड़बड़ हो गया है या सम क्राइम कुछ कमिट हो गया तो वकील जाके उसके बिहाफ में द वकील विल बी टॉकिंग, तो दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेट. ओके, सो दिस फंक्शन द नर्स फंक्शंस एज अ चाइल्ड एडोलेसेंट एंड अ फैमिली एडवोकेट. ओके, the nurse will be talking for the child or maybe adolescent. She can be a family advocate and she facilitates the entire family transition from hospital to home and community. ठीक है, उसका मतलब क्या है, if you have a sick child
वो सिक चाइल्ड को हॉस्पिटल से घर में अभी रखेंगे. समटाइम्स सम सिकनेस आर सच दैट they require extensive care at home also, maybe for a short duration or maybe for a long duration. Okay, तो जो नर्स क्या करती है, शी फैसिलिटेट्स कैसे बच्चों का ट्रांजिशन, द केयर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द होम. तो पेरेंट्स को सिखाते हैं कि भाई कैसा केयर करना, कैसे फीड देना, क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स. सो दिस एंड द होल फैमिली इज इन्वॉल्व. सो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट होने के लिए जो भी जरूरत है, the nurse will be helping them. Next is facilitate and support transition to adult services when appropriate. अभी देखो, अभी हमने पढ़ा कि we are talking from birth till adolescence, but adolescence के बाद फिर adult services start हो जाते, तो nurse helps in that also from transition to adult services. जैसे बच्चे का एज कंप्लीट हुआ, so the child will not be coming to a pediatric OPD but will be going to an adult OPD. Okay, next is influences public policy and legislation that affect pediatric rehabilitation through active support or direct involvement. ठीक है, बच्चों से संबंधित कुछ भी लॉस बनता है, so a pediatric nurse can play a very important role which affect the pediatric rehabilitation, can be due to active support or maybe due to by direct involvement. ठीक है, next is provide health education for professionals and consumers regarding healthcare of children with disabilities and their families. ठीक है, तो जो बच्चे disabled रहते हैं, so the nurse will provide health education to the professionals also, और साथ में parents को भी the nurse will be educating how to take care of children with disability. Okay, so these are the functions as advocate. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर. ठीक है, कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर मतलब देखो यहाँ पे नर्स है, देयर कैन बी अ पीडियाट्रिशियन, देयर कैन बी अ सोशल वर्कर लाइक दिस. सो कोऑर्डिनेटर मतलब बाकी लोगों से मिलकर काम करना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटर. वर्क्स एज अ वैल्यूड मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम. ठीक है, बच्चे को कुछ भी, इफ शी इज अ स्किलफुल नर्स, शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द सिम्टम्स, बिकॉज शी इज द पर्सन जो बच्चों के साथ मैक्सिमम रह रही है, तो शी विल बी आइडेंटिफाइंग एंड देन कॉलिंग द फिजिशियन. ठीक है, सो शी इज अ वेरी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द हेल्थ care team, then brings together the expertise of the health professionals and integrates that knowledge integrates that knowledge into a comprehensive continuum of care. उसका मतलब क्या है, नर्स क्या करती है, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो पूरे का मदद लेकर उस नॉलेज को अ कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूम ऑफ केयर. कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूम ऑफ केयर का मतलब क्या है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, द डॉक्टर विल कम, examine the child, write some treatment, and then the doctor is nowhere in the scene. Now it is a nurse who will manage that knowledge into a comprehensive continuum of care. उसका मतलब कि जो भी लिखा पढ़ी हुआ है उसको केयर में कन्वर्ट करने के लिए the nurse places a very important role. Okay, next is facilitates the design and implementation of the child's, adolescents or family's individualized plan of care. ठीक है, that is very important. अब pediatric ward में काम करने से पता चलेगा बेड नंबर 1 का जो प्लान ऑफ केयर है will not be for बेड नंबर 2, क्योंकि बेड नंबर 1 का केयर केस is something different, बेड नंबर 2 का केयर is different. So the nurse has to plan individualized plan of care. जिस बच्चे को क्या केयर चाहिए, उनके फैमिली को क्या चाहिए, उनके एडोलेसेंट, इट कैन बी अ चाइल्ड, इट कैन बी एडोलेसेंट, इट कैन बी फैमिली. सो सी, वन थिंग टू कीप इन माइंड इज, एडल्ट में हम लोग सिर्फ एडल्ट और family members हैं, but for children, as soon as the child gets involved, the whole family gets involved. ठीक है, so whenever you are taking care of the child, we are also to involve the family also. ठीक है, next is facilitates the coordination of academic activity, hospital based, homebound, return to regular classroom. ठीक है, many a times when suppose if it is a school going child, the child has to is hospitalized. Okay, then she can coordinate the academic activity, can be hospital based, if suppose it will take off COVID situation. Okay, COVID situation gives a very good example. The child may be admitted but still can attend the school online. Okay, so such type of things can be coordinated as and when required. Okay, next is uses appropriate resources to develop and implement an individualized teaching, a discharge plan
विद द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट टू द फैमिली, ठीक है। नाउ नर्स को क्या करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग। फॉर एग्जांपल सपोज एक जुवेनाइल डायबिटीज वाला बच्चा है तो उसको इंसुलिन इंजेक्शन सिखाना पड़ेगा। पहले जब बच्चा छोटा रहेगा दी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो हैव टू बी टॉट, फिर कैसे उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करना, क्या है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, रोटेशन ऑफ साइड्स कैसे करेंगे, दिस आर ऑल इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, ठीक है। जो टीचिंग आप जुवेनाइल डायबिटीज को दे रहे हैं थैलेसीमिया वाले को, वो टीचिंग से काम नहीं चलेगा बिकॉज द नीड इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग एंड डिस्चार्ज प्लान। डिस्चार्ज प्लान मतलब कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जिसमें फॉलो अप जरूरी है। बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, फिर से उसको हो सकता है। बच्चे को थैलेसीमिया है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज विच विल कंटिन्यू। बच्चे को सिकल सेल डिजीज है, अगेन इट इज अ लाइफ टाइम डिजीज। सो दिस इज scope for individualized teaching as well as discharge plan with the child or adolescent, and naturally it has to be with the family, okay. So this is coordinator of care, where she works as a very important valued member of the health team. She will be utilizing the expertise of the whole coordinate and use that knowledge and help in continuing the care of the child, and she will plan individualized care and coordinate the academic activities if possible, and then she has to focus on individualized teaching and help in discharge plan with the child, adolescent and their families, okay. So that was all about today's class, okay. So today what we this was part 1, okay. Next part we shall be studying the remaining part of extended role. In the next class I shall be also giving you the difference between what is the difference between extended role and expanded role of nurses, okay. So we shall be studying about that. So today what we have studied is we have studied what do you mean by pediatrics. We have also studied that we are taking care, we are giving preventive, promotive, curative and rehabilitative care of the child. कब से, कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंट तक। एडोलेसेंट का एज 18 years है, बट अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक्स के हिसाब से इट इज 21 years, ओके। नेक्स्ट वी स्टडीड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द चाइल्ड एज वेल एज एडल्ट। कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स। वी आल्सो स्टडीड सम ऑफ द extended role of the pediatric nurse, okay. Have a good day, thank you.